Good morning. I am Anil Agarwal, former Chief Manager, Punjab National Bank. So, one question is asked by many subscribers now. I am happy thousands of my subscribers heeded to my advice and now they are using the mock test suggested by me and they are showing improvement day by day. But some of the subscribers are now confused as so many exams are lined up how we should plan attempt of our mock test. So in this video I will cover how you should prioritize use of mock test so that you can study as well as you are able to attempt the mock test. Say you are candidate of RBI assistant, SBI junior associate, IBPS RRB office assistant, IBPS RRB officer, IBPS PO as well as IBPS clerk. That means say 6 exams are lined up. You can replan according to how many exams are lined up for you. For certain people 3 exams may be lined up, another person 4 exams may be lined up, another person all the 6 exams are lined up. Say you have attempted RBI assistant today and today is 12th. So today you will attempt say RBI assistant main mock test from the link that I have given you in the description and comment column. My advice to all other subscribers is those who have not taken this mock test till now, they should subscribe it today itself. Take annual plan, it is going to help you. Those are already exercised and utilizing the annual plan I am covering in the today video. Say you have attempted the RBI assistant main mock test today. Now there may be candidate those who have not passed RBI assistant prim. So they can attempt the SBI junior associate main mock today. Say you are not sure that you will be able to clear SBI junior associate. Then you can focus on IBPS RRB office assistant. So depending upon your profile, you will attempt one mock test today. Then the second mock test of another exam will be attempted by you after gap of 2 days. That means the second mock test you should attempt on 15th. That means the candidate who has attempted RBI assistant today will attempt SBI junior assistant on 15th. The persons those have attempted SBI junior associate today, they will attempt IBPS office assistant on 15th and so on. So depending upon your number of exams, you will space 3 days between one mock test and another mock test, and you go on changing the exam also if you are applying for multiple exams. So first you should attempt RBI assistant if you are eligible, then SBI junior associate, and after giving 3 days, 2 days gap, on 18th of this month you should attempt IBPS RRB office assistant, and it should be preliminary first mock. Then give gap of 3 days, and on 21st you can attempt the IBPS RRB officer. Then give 2 days gap, on 24th attempt IBPS PO. Give 2 days gap and then attempt IBPS clerk, and then come back to the same seriatim. So this will take away your confusion which mock I should attempt. This is one style. Another style is you want to do it daily. You don't want to give gap. Then the choice is you can do RBI assistant today, SBI junior associate on 13th tomorrow, then RRB office assistant 14th, RRB officer on 15th, on 16th IBPS PO, on 17th IBPS clerk. I am uploading video for each examination and I am giving mock test number in that, but does not mean that you have to follow on same day both the videos.
You have to pick either of the video because on a single day you can only follow one advice, not both the advice. But I have to cover all the examination so that broad spectrum of our candidates are covered. It will depend how many examination you are giving. So you have to readjust study plan according to your number of exams. I think this is very clear. Don't overspend time on mock test. This is my advice. Don't do more than one mock test on a single day. Because the purpose of mock test is to identify the weakness. So once you attempt the mock test, you identify the weakness, spend rest of time on study from textbook of your weak areas. So studying from the weak textbook and covering the current affairs and watching the videos of banking and financial awareness, these are most essential part of your daily routine. So in this video we are only covering mock test. So this video I am telling you how to take best use of mock test for multiple exams. अब यही बातें हम हिंदी में करेंगे. अब मुझे खुशी है हजारों की तादाद में हमारे सब्सक्राइबर्स ने कहना मान के वो मॉक टेस्ट यूज़ करना शुरू किया है जो मैंने आपको प्रिस्क्राइब किया और लगातार उनमें इम्प्रूवमेंट भी आ रही है. वो मुझे स्क्रीनशॉट भी भेज रहे हैं और मैं अपनी वॉल पे उसको लगा भी रहा हूँ. अब अगला प्रश्न हमारे सामने ये आता है कि अगर मुझे मल्टीपल एग्ज़ाम देने हैं, मल्टीपल मॉक टेस्ट हैं, तो ये मॉक टेस्ट मैं कैसे अटैम्प्ट करूँ. कई कैंडिडेट कंफ्यूज्ड हैं कि सर आज कौन सा मुझे मॉक टेस्ट करना चाहिए. तो इसके लिए मैं आपको 2 अल्टरनेट मेथड सजेस्ट कर रहा हूँ. इसमें से कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं. मान लो आपने आरबीआई असिस्टेंट में भी बैठना है, एसबीआई जूनियर एसोसिएट में भी बैठना है, आईबीपीएस आरआरबी ओए में भी बैठना है, आईबीपीएस आरआरबी ऑफिसर में भी बैठना है, आईबीपीएस पीओ में भी बैठना है और आईबीपीएस क्लर्क के एग्ज़ाम में भी बैठना है. मान लो ये 6 एग्ज़ाम आपके सामने हैं. कुछ लोगों के कुछ और एग्ज़ाम भी सामने हो सकते हैं. वो अकॉर्डिंगली इस मेथड में मैं बेसिक समझा रहा हूँ, अपने हिसाब वो इसको रिफाइन कर लें. अब सारे मॉक आप एक दिन में नहीं कर सकते और करने भी नहीं चाहिए. तो सबसे बेहतरीन तरीका क्या है, मान लीजिए आज 12 तारीख है, आज आप आरबीआई असिस्टेंट का एक मॉक टेस्ट कर लीजिए, फिर 2 दिन का गैप दे दीजिए, फिर 15 तारीख को एसबीआई जूनियर एसोसिएट का कर लीजिए, फिर 2 दिन का गैप दे दीजिए, फिर आईबीपीएस आरआरबी का आप कर लीजिए ऑफिस असिस्टेंट का, फिर 2 दिन का गैप दे दीजिए, आईबीपीएस आरआरबी ऑफिसर का दे दीजिए 21 को, फिर 2 दिन का गैप दे दीजिए, फिर आईबीपीएस पीओ का मॉक टेस्ट दे दीजिए, फिर 2 दिन का गैप दे दीजिए, आईबीपीएस क्लर्क का मॉक टेस्ट दे दीजिए. अब मान लीजिए आप चाहते हैं नहीं मैं तो रोज करना चाहता हूँ मॉक टेस्ट, वो मॉडल भी आप अडॉप्ट कर सकते हो. उसमें आप क्या करेंगे, आज मान लो आप आरबीआई असिस्टेंट का मेन दे देते हैं, कल आप एसबीआई जूनियर एसोसिएट का मेन दे दीजिए, इसके बाद 14 तारीख को आईबीपीएस आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट का दे दीजिए, उसके अगले दिन आईबीपीएस आरआरबी ऑफिसर का दे दीजिए, उसके अगले दिन आईबीपीएस पीओ का दे दीजिए, उसके अगले दिन आईबीपीएस क्लर्क का दे दीजिए और फिर इसी ऑर्डर के अंदर रिपीट करते जाइए. मॉक टेस्ट यदि आप अटेम्प्ट कर रहे हैं तो निहायत ज़रूरी है वीकनेस को आइडेंटिफाई करके उसको टेक्स्ट बुक से पढ़ना. ये बहुत ज़रूरी स्टेप है. काफ़ी लोग इस स्टेप को मिस करते हैं, वो सिर्फ मॉक ही करते रह जाते हैं. ये भी जरूर, मॉक एक हिस्सा है, हमें दोनों हिस्से करने. जैसे एक नट बोल्ट होता है ना, नट भी इम्पॉर्टेंट है, बोल्ट भी इम्पॉर्टेंट है, तभी चीज़ कसी जाएगी. नट ही नट लगाते रहेंगे, बोल्ट नहीं लगाएंगे, लूज है, गिर जाएगी चीज़ वो. तो नट बोल्ट कसने हमें. नट बोल्ट का मतलब है 2 एस्पेक्ट हैं, एक है मॉक, एक एस्पेक्ट है पढ़ाई. मॉक हमें ढूंढ के दे रहा है हमारी कमियां और कमियों को दूर करना है हमने पढ़ के. और पढ़ना कहाँ से, बेसिक टेक्स्ट बुक. उसके लिए मैंने आपको वीडियोस दी है, व्हाट इज़ द राइट वे ऑफ प्रिपरेशन, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है. फिर 80+ कैसे ला सकते हैं मार्क्स, उसका भी मैंने आपको लिंक दिया है. फिर करंट अफेयर कहाँ से पढ़नी है, उसका भी मैंने आपको लिंक दिया है. फिर कौन सा मॉक अटैम्प्ट करना है, उसका भी मैंने आपको लिंक दिया है. बैंकिंग अवेयरनेस में नॉलेज कैसे बढ़ाऊँ, उसका भी मैंने लिंक आपको दिया. मैंने आपके कहने पे हिंदी इंग्लिश में काफ़ी वीडियोस बना दी हैं. तो ये सारी चीज़ें आपने समझनी है.
इसके लिए प्रॉपर वे में टाइम टेबल बनाना है। डेली करंट अफेयर करनी भी जरूरी है। डेली बैंकिंग अवेयरनेस की वीडियो भी 5-10 देखनी जरूरी है। डेली हमें टेक्स्ट बुक पढ़नी भी जरूरी है। और उसके अंदर आपको मॉक टेस्ट को कैसे फिट इन करना है, ये आपको टाइम टेबल बनाना है। 2 मॉडल मैंने आपको दे दिए, 2 दिन के गैप वाला भी और डेली वाला भी। जो आपको अच्छा लगता है आप उसको आजमा लें। अब मान लो कोई ये 6 के 6 एग्जाम नहीं दे रहा, खाली 2 दे रहा है या 3 दे रहा है, उसके अकॉर्डिंगली आप अपना प्लान कर लीजिए। तो मैंने आपको बेसिक मॉडल दे दिया कि मल्टीस्पिलिटी ऑफ एग्जाम्स के लिए मॉक टेस्ट का जो कंफ्यूजन है वो कैसे दूर करें। मैं हर मॉक के लिए आपका सीरीज चलाई है, आपको उसमें से पिक करनी है। आज मान लो आपने सवेरे SBI जूनियर एसोसिएट की वीडियो देखी और शाम को मैंने डाल दी IBP SPO की, तो दोनों नहीं आप एक दिन में शेड्यूल लागू कर सकते, दोनों में से एक चुनना है आपको उस दिन के लिए। तो ये एडजस्टमेंट आपको अपने हिसाब से करनी है। मेरे पास तो वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ मेरे कैंडिडेट हैं, हर व्यक्ति की अलग अलग रिक्वायरमेंट है, सबके लिए मैं वीडियो डाल रहा हूँ। आपको अपने हिसाब से उसको प्लान आउट करना है कौन सा वीडियो आपके लिए रेलिवेंट है। ऐसे आप करेंगे आपको सक्सेस मिलेगी। 11,000 से अधिक आज ऐसे सब्सक्राइबर हैं हमारे चैनल पे जिनको नौकरी मिल चुकी है, या वो बैंकिंग के अंदर है या इंश्योरेंस में है या किसी और सेक्टर में है। और अधिकांश लोगों को ये सफलता जो राइट एडवाइस एट राइट टाइम इस चैनल पे दी जा रही है उसको फॉलो करके मिली। आप देखते होंगे उनके कमेंट, हजारों की तादाद में वो कमेंट आ रहे हैं। मैं अपने चैनल के वॉल पे भी वो कमेंट्स भी आपको पोस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि उससे जिसने मुझे कमेंट भेजा है उसको भी इंकरेजमेंट मिलती है कि मेरा कमेंट सर पढ़ते हैं, उसको वैल्यू करते हैं, उसको वॉल पे चिपकाते हैं। आपकी लाइफ में इंकरेजमेंट बहुत बड़ी चीज़ है। आपको डिस्करेज करने वाले बहुत लोग मिलेंगे, आपकी टांग खींचने वाले भी बहुत मिलेंगे, पर अगर आपको कोई इनकरेज करता रहेगा आप अपनी मंजिल पे जरूर पहुंचेंगे। ये मेरी बात आप नोट कर लीजिए। इनकरेजमेंट निहायत जरूरी है और मेरा उद्देश्य इस चैनल का यही है कि आपके अंदर इनकरेजमेंट बनाए रखना, आपके अंदर उत्साह बनाए रखना, आपको सही रास्ते पे चलाए रखना, ताकि आप ज़िंदगी में कामयाब हों और फिर मुझे बताएं कि सर मेरी भी नौकरी लग गई है। और वही मेरे लिए सबसे ज़्यादा खुशी का दिन होता है जब हमारा चैनल सब्सक्राइबर हमें बताता है कि सर मेरी भी नौकरी लग गई है। इसी उद्देश्य को लेके हमने चैनल बनाया और मुझे खुशी है 11,000 से अधिक परिवारों के अंदर हम खुशी बांट पाए हैं। मेरा उद्देश्य तो है 1 लाख से अधिक बच्चों की मैं मदद कर सकूं, पर अब वैकेंसीज कम आ रही हैं तो थोड़ी सी मंजिल ये दूर होती जा रही है, बट फिर भी हम लगे रहेंगे, अपने लक्ष्य को पाएंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल।